Welcome back. There's been a massive twist in the face-off over whether Hindus can worship the Shirdi Sai Baba as an incarnation of God or not. A religious conclave or a massive Dharam Sansad convened in Chhattisgarh has said that the Sai Baba of Shirdi is neither a saint nor a god. This is a very controversial decision because there are lakhs of followers of the Shirdi Sai Baba who worship him as God. The seers who assembled at the religious parliament, however, ruled that Sai Baba is not a god, and they have passed an edict that statues of the Shirdi Sai Baba will be removed from temples using force if need be. The decision to brand Sai Baba, revered by millions, was taken by the Kashi Vidvat Parishad. There were ugly scenes at the event before the decision was taken. Devotees of the Sai Baba fought pitched battles with followers of Shankaracharya Swarupanand Saraswati. The Shankaracharya, who is opposed to the worshipping of Sai Baba as a god, had convened the religious parliament. There you can see those images if you can play them up on our screen. The scuffle began when two Sai devotees who had come to put forth their view on the Sai Baba debate questioned the Shankaracharya, which irked his devotees. Later, the Shankaracharya himself had to intervene to ease the tension, and the police had to deploy extra force to prevent any further mishap. Around 400 religious leaders came together for the two-day-long Dharam Sansad that began Sunday. शंकराचार्य हिंदू धर्मों को चैलेंज कर रहा है। मैं देख रहा हूँ। कृपया जी अन्न जल के बिगर अन्न जल के यहाँ पर आइए, बैठिए। जौन जितने साईं जल भी ग्रहण नहीं किया जाएगा। जब भी नहीं करेंगे, आ जाओ। भाई। Joining me in the studio now is Vivek Mudgal. He's a Jyotish Acharya and astrologer. He is a devotee and a supporter of the Shankaracharya. With us also Acharya Pramod Krishnan. He supports the right of Hindus to worship the Shankaracharya. I want to go across first to Pramod Krishnan, because what we're seeing, sir, is very, very dangerous. The Shankaracharya has been around for decades. What, according to you, explains the sudden decision by this big religious conclave which says tomorrow onwards statues of the Sai Baba will be demolished if need be? Rahul, this is very much unfortunate, and this is totally violence, undemocratic announcement, and the belief very much belong to individual. करोड़ों साईं के भक्त हैं, ये कौन फैसला करेगा कि कौन भगवान है या नहीं? According to our Shastra, Purana, Ved, God is everywhere. तो हाउ कैन शंकराचार्य सेज के गॉड यहाँ है, यहाँ नहीं है, साईं हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता है? एंड शंकराचार्य जी सेज के साईं बाबा इज सन ऑफ ए प्रोस्टिट्यूट एंड ही वाज मुस्लिम. मैं कहना चाहता हूँ, शंकराचार्य जी के पास क्या जन्म प्रमाण पत्र है उस जमाने का? कौन जानता है साईं बाबा क्या थे? लेकिन साईं बाबा ने ये बात कही कि सब एक हैं, गॉड इज वन, सबका मालिक एक. तो अगर करोड़ों लोग साईं की भक्ति करते हैं, इस देश में गंगा की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, पत्थर की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, सांप की पूजा होती है. जब इस देश में हमारे सनातन धर्म में सांप पूजा जा सकता है, तो साईं बाबा की पूजा Why not? That's a very important point. साईं बाबा की पूजा में क्या नुकसान है? Why should one Shankaracharya have a problem if there are lakhs of devotees who want to go out and pray to the Sai Baba? How can the Dharam Sansad issue an order which says that Sai statues will be demolished? This is the violence is the last thing that you expect from seers. This is Hindustan, not Taliban. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मैं जरा हिंदी में आपसे बोलूंगा, और मुझे हिंदी में ही आप समझाएंगे तो मैं अच्छे से समझ पाऊंगा और आपकी बात का जवाब दे पाऊंगा. सबसे पहले तो महाराज जी ने, मेरे पूज्य हैं, पूजनीय हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सभी देवी देवताओं को और कण कण में व्याप्त है. जो मैं समझ सका, कण कण में तो व्याप्त है, परंतु सभी के मंदिर बना के पूजने का तो विधान नहीं है हमारे शास्त्रों में. हमारे यहाँ सर, तो पर कोई साईं बाबा कल तो नहीं आए ना. साईं बाबा की तो कई दशकों से पूजा चल रही. 1918 में शरीर शांत हुआ है साईं बाबा को, और हमारे यहाँ पितरों का पूजन करने का विधान नहीं है.
हमारे सर, ये यहाँ 100 साल बाद कंट्रोवर्सी कहां से आई? 100 साल बाद कंट्रोवर्सी, जब पानी नाक से ऊपर गुजरेगा, जब हमारे वेद शास्त्रों का खंडन किया जाएगा, वेद शास्त्रों के द्वारा साईं बाबा का पूजन किया जाएगा, जिनको पितृ कहा गया, जिनको फकीर कहा गया, जो संत कहे गए, संतों का पूजन वेद शास्त्रों से नहीं होता, वेद के मंत्रों से नहीं होता। हमारा विषय यह है कि हमारे वेद शास्त्रों के साथ खिलवाड़ क्यों गया? सर, आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर फर्ज कीजिए मैं साईं का भक्त हूं, मुझे अधिकार है साईं को पूजने का, आप कौन होते बताने वाले? बिल्कुल, हम यही आपसे कह रहे हैं कि हम कोई अगर होते हैं तो हम अपने शास्त्रों की बात कर रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में। सर, आप बाकी हिंदुओं को बोल रहे हैं कि आप साईं की पूजा नहीं कर सकते। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आप कौन होते हैं ये कहने वाले? साईं की पूजा कर सकते हैं, परंतु हमारे वेद मंत्रों के साथ, हमारे मंदिरों में सनातन पद्धति के अनुसार आप उसकी पूजा नहीं कर सकते। हम ये सर, नहीं कह रहे कि आप ये जो कहा आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कि सांप की पूजा होती है, पत्थर की पूजा परंतु होती मंदिर है, बना के पूजने का विधान कहाँ है? हमारे यहाँ पीपल की पूजा होती है, हमारे यहाँ गंगा की पूजा होती है, हमारे यहाँ हर चीज की कण कण में जो महाराज जी ने बोला उसकी पूजा होती है, परंतु हमारे आचार्य कृष्ण, मंदिर बनाने की पूजा नहीं है। मंदिर बना के ढकोसला Why do you think 100 years later, पूजा करने का why do you think 100 years later this controversy has now erupted? राहुल, दिस इज टोटली अनफॉर्चुनेट एंड ईगो को सेटिस्फैक्शन के लिए, ईगो सेटिस्फाइड हो शंकराचार्य जी की, इसके लिए विवाद है। देखिए, ये भी कह रहे हैं कि कण कण में भगवान है, लेकिन साईं में नहीं हो सकता। एक सेकंड, लिसन, डोंट इंटरप्ट मी विराट जी। मीरा ने कौन सा शास्त्र पढ़ा था? कबीर ने कौन सा शास्त्र पढ़ा था? सूरदास ने कौन सा शास्त्र पढ़ा था? भक्ति जो है श्रद्धा का विषय है, प्रेम का विषय है, आस्था का विषय है, बिलीफ का विषय है, और शास्त्रों का विषय धर्म है। साईं के भक्त साईं को अगर भगवान मानते हैं तो मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि वो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। और जहां तक शंकराचार्य जी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि वो मरे हुओं की पूजा नहीं हो सकती है, तो भगवान कृष्ण भी धरती से गए हैं, राम भी धरती से गए हैं, तो फिर उनकी पूजा क्यों होती है? तो आप राम और भगवान कृष्ण को साईं के साथ जोड़ देंगे क्या? और आप भगवान कृष्ण की तुलना साईं के साथ कर सकते हैं? साईं बाबा ने कभी कहा ही नहीं कि मैं मुझे भगवान कहिएगा। इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। ये पुस्तक शिरडी साईं नाथ के नाम से, जिसको साईं बाबा कहा जाता है, उनके। सर, आप अपना व्यू दूसरे पे क्यों थोप रहे हैं? आपको नहीं करनी साईं बाबा की पूजा, आप मत कीजिए। बात खत्म। आप क्यों दूसरों पे, अरे आप क्यों तय करेंगे कि बाकी क्या करेगा? खिलवाड़ किया जाएगा, हमारे मंत्रों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो हम क्यों नहीं जाएंगे? कोई आपको मैं जवाब दीजिए आचार्य, आपको लगता है विवेक मुद्गल जी कि कल जाके स्टैचूज को तोड़ना, साईं की मूर्तियों को तोड़ना, वो भी ऐसे लोग जो कि अपने आप को धर्म गुरु करते, क्या ये ठीक है? अगर धर्म संसद से इस किसी तरह के विषय के ऊपर अगर कोई ऐसी नहीं, अगर मगर नहीं है तो ऑर्डर पास हुआ है धर्म संसद में, ऑर्डर पास हुआ है, बिल्कुल तो हुआ है। हमारी प्रार्थना ये है कि साईं की मूर्ति को तोड़ना क्या धर्म है? हमारी प्रार्थना उन भ्रमित व्यक्तियों से रहेगी जो साईं का पूजन करते हैं। आप सवाल का जवाब मत दीजिए, आप घुमा रहे हैं। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि धर्म संसद में निकल के आया कि कल सुबह जाके साईं की मूर्तियों को तोड़ना शुरू करो, इससे फसाद होगा, बवाल होगा। आपको मालूम है कि साईं बाबा के कितने सपोर्टर्स हैं? बिल्कुल, ये हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती और क्षमा प्रार्थी हूं कि अगर इस तरह का कोई वहां से ऐलान हुआ है तो इसका तो खंडन मैं भी करता हूं कि ऐसे किसी मूर्ति को तोड़ नहीं सकते, समझा सकते, परंतु साईं बाबा का पूजन करने का कोई नहीं। I want to go across live at this time to the big Sai temple at Lodi Road in New Delhi. Joining us from there is my colleague Ankit Tyagi. Ankit, the Dharam Sansad says that tomorrow onwards Sai statues should be demolished. You've been speaking to several supporters and workers of the Sai Trust. What are they telling you? What are the preparations on at Ground Zero? What are they making of what the Dharam Sansad has said? Well, here at Lodi Road, the management, in fact, has asked for extra security from the police station at Lodi Road. They have said that in days to come, for the next 2-3 days, they believe that there could be some antisocial elements, according to their complaint, who can try and destroy property here. I'm right now outside the temple itself. It's closed as of now. The devotees still coming in. And Rahul, today is Monday, not it's a Thursday when there are huge crowds, but as we came here about an hour back, there were a lot of people. Let me just go across and try and speak to a few of the devotees of Sai Baba. जो धर्म संसद हुई है उसमें लोग कहा गया है कि साईं बाबा भगवान नहीं है, उनकी जो मूर्तियां हैं, वो जो उनके मंदिर हैं, उनको तोड़ा जाए और जिस तरीके के से उनकी पूजा होती है वो पूजा नहीं होनी चाहिए। आप लोगों का उसमें क्या कहना है? मुझे तो ये समझ नहीं आता, लोगों को अब याद आया, वो भी इतने टाइम बाद। साईं बाबा अभी से तो नहीं है, वो पता नहीं 18वीं सेंचुरी से है, वो अब भी उनको ऐसा क्यों याद लगा? अचानक से अनफॉर्चुनेटली उनके दिमाग में ऐसा क्या आया कि बाबा के खिलाफ ऐसा जाना है? क्यों आपको लगता है कि इस तरह का ये जो पूरा हुआ है आज और इस तरीके से उनके साईं बाबा के खिलाफ बोला गया है कि उनके भक्तों को भी कहा जाए कि वो हिंदू जो पुराण है उसके हिसाब से उनकी पूजा ना करें, वैदिक पद्धति से पूजा ना करें?
हमारे हिसाब से सारे गुरु एक ही हैं, बाबा भी एक ही हैं, सबको एक ही मानना चाहिए। पर उनका ऐसा क्यों विचार आ रहा है, अब उनको क्यों याद आ रहा है ये सब बोलना? कल अगर यहाँ पर मंदिर को या मूर्तियों की इस तरह से खतरा या तोड़ने की कोशिश की जाती है तो आप लोगों का क्या रहेगा, किस तरीके से आप उसे? हम तो नहीं तोड़ने देंगे। This तो वहाँ पर हम इसके जरूर is a ऑब्जेक्शन करें कि हाँ इसको नहीं तोड़ा जाए। Rahul, this is precisely what would be our trouble now. This is a complete collision course. If some sort of a attempt is being made to destroy the temple or the Sai, statues, devotees are saying we are ready. We will not let that happen. Well, this is an unnecessary showdown. This is not the sort of behavior you expect from people who claim to be men of God, religious leaders. What happened at the Dharam Sansad is unfortunate, and any order which leads to violence is completely unacceptable. It is everyone's right to decide whom they wish to pray to. That's what our constitution guarantees, and no religious leader can enforce his wish over others. For the time being, Acharya Pramod Krishnan and Vivek Mudgal for joining us with your thoughts. I'm glad that you said, Mr. Mudgal, that what the Dharam Sansad has done is wrong and that you don't support it, because we don't want violence and we don't want religious leaders giving orders for violence. तालिबान ने बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ी थी, पर हम तालिबान नहीं है, ये तालिबान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, ये तो आतंकवाद है, ये तो अराजकता, इनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए अगर ये, और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड करता हूं कि वो तमाम साईं मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। It is the responsibility of the government to ensure the safety and security of all Sai temples. Goons pretending to be godmen cannot be allowed to come and demolish these temples. For the time being, gentlemen, for joining us tonight, thank you very much.